Hello everyone, welcome to the YouTube channel. This is the session regarding BARC exam guide. Basically, I am going to tell you how to prepare for this BARC exam. So, first of all, let me introduce myself. This is Krishna Jaiswal, All India Rank 112 GATE CSE 2024, 997 GATE DA, 156 GATE CSE 2025. For MTech, I got selected at IIT Bombay, ISC, on all the top 7 IITs, IIT Hyderabad, and I got 99.96 percentile at UGC NET, and I have also qualified the state exam. Currently, I am working as an executive engineer at Power Grid. I also got selected as an officer at IOCL. Also got selected at junior executive at Airports Authority of India, well probationary engineer, and also scientist at the ISRO, and BARC scientist officer, and TRF scientist, but result is currently pending. And I got interview calls from this organization, but I didn't go for the interview, like DRDO, NHPC, SAIL, RFCL, Hindustan Copper Limited, Intelligence Bureau. And except these selections, I have some other selection like deputy manager at NHAI, UP Metro assistant manager, and I have 36 plus paid booking on TopMate, and I was in top 1%. Beside this, I have 35k follower at LinkedIn. So let's start the session. So before preparing for the any exams, first need to know about the syllabus. What is the syllabus for that exam? So if we talk about syllabus, like C programming, data structure, algorithm, operating system, database management system, computer network, theory of computation, compiler design, digital, COA, software engineering, OPS, and web technology are there. If you notice one thing, like these 10 subjects are also part of GATE syllabus. So if you are already have prepared for the GATE exam, then you are by default preparing for BARC exam. Like you do not need to prepare separately for the BARC exam. Like these 3 subjects are extra, which you can cover from some YouTube channels. Like questions from these subjects are mostly theoretical, so you can watch any of the YouTube channel and can complete these subjects. So this is all about the syllabus of the BARC exam. So let me talk about the exam pattern. If I talk about the exam pattern, the exam is computer based test. The duration is of 2 hours. There are 100 question each of 3 marks. So total marks is of 300 marks. And if I talk about negative marking, there is -1 negative marking for each incorrect questions, and question types are all question types are MCQs. So this is all about exam pattern. So if I talk about previous year cutoff, like in 2023 it was 114 out of 300, in 2024 it was 107 out of 300, and 2025 it was 124 out of 300. So the final question is how to prepare for the exam. Like as I already told, most of the syllabus is your GATE subjects plus 3 extra subjects. Like 70% questions are from your GATE subject, 70 to 80% questions. So if you only prepare your GATE subjects, like if you prepare only your GATE subjects, then you can easily crack this exam. Like if we talk about cutoff, then it is the range of 100 to 120. So if you are able to correct 40 questions, like 40 into 3 is 120, 40 questions you are 40 to 50 questions you are able to correct, then you can easily clear this paper. So like if you just focus on the GATE subjects, like the subjects which are in GATE and have an intersection with BARC exam, like all the core subjects are definitely there in
बार के एग्ज़ाम। सो अगर आपने मतलब सिर्फ गेट के सब्जेक्ट्स के को भी करके चले गए तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। लाइक आपको इस एग्ज़ाम के लिए सेपरेटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी गेट सब्जेक्ट्स आपने किए हैं, जितने भी गेट सब्जेक्ट्स किए हैं उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना है। देन आपको अगर आपके पास टाइम है तो मतलब 1 मार्क्स के PYQs तो करने ही है, और अगर आपके पास टाइम है तो 2 मार्क्स के PYQs भी कर सकते हो। मतलब दिस इज़ ऑप्शनल, मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप ये कर सकते हो। और बात किया जाए तो जैसे कि मैथ से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, वेरी फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स। And there is no question from aptitude. So moral of the story is you just need to focus on GATE CSE core subjects and try to solve all 1 mark question of GATE PYQs. That is enough to crack this exam. So like if you in final exam, if you are able to do 60 to 70 questions, then you can easily crack this exam. Like 60 to 70 से क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो आपकी एक्यूरेसी तो 100% होगी नहीं। इसमें अगर आपने 50 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लिए तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। डेट इज़ इनफ, मतलब 50 क्वेश्चन काफ़ी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो आप टेस्ट सीरीज़ में मार्केट में चेक कर सकते हो कि काफ़ी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, बट एक सजेशन मेरे साइड से भी कि आप मतलब जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है को अगर आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हो, लाइक आपने मान लीजिए कि अगर मैं मतलब 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं 120 मिनट्स में, तो सिमिलरली आपने मान लीजिए कि आपने 50 मतलब 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो 1 मार्क्स क्वेश्चन PYQs, और उसके अकॉर्डिंग मतलब अगर मैं पर क्वेश्चन बात करूँ तो पर क्वेश्चन कितना, 1 क्वेश्चन पे आपको 1.2 मिनट्स मिल रहे हैं। तो सिमिलरली आपने 20 क्वेश्चन पे आपको कितना 20 × 1.2 मतलब अराउंड कितना 24 मिनट्स मिल रहे हैं। तो आप अगर 24 मिनट्स का टाइमर लगा के 20 क्वेश्चन करते हो तो एक तरह से ये भी आपका एक टेस्ट सीरीज है, मतलब इससे आपकी भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस हो रही है। सो मतलब अगर मैं समराइज़ करूँ तो एग्ज़ाम मतलब सिलेबस तो आपकी गेट की कोर सब्जेक्ट्स है प्लस 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, जिसको अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी अगर गेट के सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, मतलब आपने सारे PYQs 1 मार्क्स के PYQs कर रखे हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस सब्जेक्ट्स। बट अगर आपकी वही चीज़ें मिसिंग है, मतलब आपने गेट के सब्जेक्ट्स भी सही से नहीं किए हो, तो फर्स्ट फोकस ऑन गेट सब्जेक्ट्स। एंड एग्जाम पैटर्न इज सिमिलर, मतलब 100 क्वेश्चन है और आपको टोटल हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, टोटल 300 मार्क्स हो गए, और -1 नेगेटिव मार्किंग होती है ईच इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए, और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस MCQs रहते हैं। और प्रीवियस ईयर कटअप अराउंड 114, 107 एंड 124 है, विच इज़ इन द रेंज ऑफ 40 to 50 क्वेश्चन। अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन आपने कर लिए तो यू कैन इजीली क्लियर दी कट ऑफ। और प्रिपरेशन के लिए आप मतलब गेट सब्जेक्ट्स के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हो, और गेट सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है और 1 मार्क्स के PYQs करने हैं। और मैथ्स और एप्टीट्यूड से काफ़ी कम क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एप्टीट्यूड से तो क्वेश्चन रहते ही नहीं है, और मैथ्स से काफ़ी कम क्वेश्चन रहते हैं, तो आप मैथ्स को स्किप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने बताया कि जो टाइम आपको 12 में पर क्वेश्चन मिलती है उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करें तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में अभी नहीं सोचना है। जब तक आपका बार का रिटन या आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो जाते हो तब तक इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में नहीं सोचना है। बार रिटन क्लियर करना है, फिर इसके बारे में सोचना है। मैं मतलब एक अलग से इसके लिए सेशन और एक वीडियो अपलोड करूँगा कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। एक्चुअली मैंने बार की इंटरव्यू क्लियर कर रखी है, तो मैं आपको एक कम्प्रिहेंसिव वे में गाइड कर सकता हूँ कि बार की इंटरव्यू कैसे क्लियर करनी है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम IIIT हैदराबाद के एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें उसके लिए मैं आपको गाइड करूँगा। इस एग्ज़ाम को भी मैंने
क्लियर किया हुआ है और मैं ट्रिपल IIT हैदराबाद में एज एन MTech CSIS स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुआ था। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा था, यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर रियल गेट गाइडेंस, और एनी करियर रिलेटेड क्वेरीज कमेंट कर दीजिए कि आपको आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे से क्या चाहते हैं। थैंक यू।